Now see the children, we are now in originally really in linear equation solving process, and in that first let's try to understand. I earlier told you there are the three methods by that you can solve the linear equation, and today I am going to explain you the substitute method. ओके, सब्स्टिट्यूट मेथड को आज हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं. सर्टेन कंडीशंस आर देयर व्हेन यू सॉल्व द सब्स्टिट्यूट मेथड. व्हाटएवर नंबर you are substituting instead of another one, that both should be equal. First condition is that. Suppose in this equation you are substituting instead of x, y. So first of all you have to take, this is your equation number 1, this is your equation number 2, and here you write first of all x plus y equal to 14. Therefore x equal to 14 plus y. आपको x की वैल्यू क्या मिली? 14 plus y, and this value you have to substitute in equation number 2 in the place of x. So you have to write here substituting x equal to 14 plus y in इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग 14 प्लस वाई इन द प्लेस ऑफ x सब्सटीट्यूट करेंगे बिकॉज x की वैल्यू इतनी है. सो यू राइट द सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4. What is the value of x here? 14 plus y. So here you have to write 14 plus y. Plus y minus y equal to 4. See children, when you shuffle this y in this side, it becomes minus y. Okay, now x equal to what? 14 minus y. Okay, so x minus y equal to 4. The value of x is x minus y, and this is minus y equal to 4. So 14 minus 2y equal to 4. Therefore minus 2y equal to 4 minus 14. So minus 2y equal to minus 10. Minus minus cancel. So y equal to 10 upon 2. Y equal to 2. Okay, next. Sorry, y equal to 5. 2 5s are 10. Now you find the value of y substituting y equal to 5 in equation number 1. What is equation number 1? X plus y equal to 14. What is the value of y? Plus 5. Okay, equal to 14. X equal to 14 minus 5. Okay, so x equal to 9. 9 plus 5, 14. And if you will do 9 minus 5, then you will get 4.
So your equation is correct. What to do? Again I am explaining you here. In substitute method, first you have to fix this thing. This variable should be same, either x or y, whatever you are substituting. जो भी आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो वेरिएबल्स इक्वल होने चाहिए. अगर नहीं है तो वी हैव टू मेक दैट, हमको बनाना पड़ेगा. वो मैं आपको अभी अगले सब में बताता हूँ. फर्स्ट थिंग, आफ्टर दैट इधर यू टेक x और y, दोनों में से कोई भी एक लीजिए, वॉट एवर यू फील कन्वीनियंट. मुझे फर्स्ट वन कन्वीनियंट लगा, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन x प्लस y इक्वल टू 40. After that, x equal to, I shuffled this y in this side, so it become minus y. Okay, so x equal to 14 minus y. Substituting x equal to 14 minus y in equation number 2. इस second number के equation में हमने इसको substitute किया. So what is equation number 2? x minus y equal to 4. Now the value of x is 14 minus y, which you kept here, minus y is this, equal to 4. 14 minus y minus 2y equal to 4. This 14, now you shuffle in this side, so minus 2y equal to 4 minus 14. Minus 2y equal to 14 minus 4 minus 10. Minus minus cancel, y equal to 10 upon 2, 2 5s are. So value of y you got 5. Now two variables are there, another variable is the x. You find the value of y, now you have to find the value of x. आपको x की वैल्यू ढूंढनी है. So substituting y equal to 5 in equation number 1, so x plus y equal to 14, x plus 5 equal to 14, x equal to 14 minus 5, so x equal to 9. Therefore x equal to 9. First of all, you always mention the value of x. Y equal to 5. Therefore solution set ब्रैकेट में 9,5. अब अगर आप उसके इक्वेशन के हिसाब से देखो तो 9 plus 5 14 होता है, और 9 minus 5 करोगे तो 4 you will get. So your answer is correct and this is the pattern to solve it. मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली गया. आपको पेज टू पेज नीचे उतरना है. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मच ये और नीचे आएगा, ये और नीचे आएगा और ये और नीचे आएगा. यू आर नॉट सपोज टू मूव हॉरिजॉन्टली, यू हैव टू गो वर्टिकली. इज इट क्लियर? प्लीज सी इट प्रॉपर्ली, देख लीजिए, फिर हम लोग अगला सम करते हैं इसके बाद में. See the next sum children. अगला सम देखो, सेकंड नंबर का सम है. ओके, हियर सेकंड नंबर, फर्स्ट का सेकंड, s minus t equal to 3. Equation number 1. And second one is your s upon 3 plus t upon 2 equal to 6. ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ. अब इसको हम इक्वेशन वैसे बोल भी नहीं सकते क्योंकि लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट फर्स्ट लीनियर फॉर्म. दिस इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म, सो टेक द एलसीएम फर्स्ट हियर. ओके, एंड राइट हियर s upon 3 plus t upon 2 equal to 6. Now you can determine, now both are prime number, so their product is LCM. 6 is LCM, 2 into s, 2s, 3 into, sorry, 3 into t, 3t equal to 6. Just do the cross multiply, so you will get 2s plus 3t equal to 6 6 are 36. अब जनाब ऊपर की सिचुएशन देखो, मैं आप लोगों के कन्वीनियंट के लिए कर रहा हूँ. यहाँ पर ये s माइनस टी
इक्वल टू 3 है, जबकि यहाँ पे 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब आप सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो भी नहीं कर सकते हो। रीजन ये मैंने आपको पहले बोला था, ईदर एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स में से कोई एक वेरिएबल सेम होना चाहिए। अब अगर आपको इसको सेम बनाना है, अगर आपको टी को सेम बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको इसको एस को सेम बनाना है तो ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, सो 2 इंटू एस, 2s माइनस 2t इक्वल टू 3 टू 6। अब देखो ये नया इक्वेशन बना है, दैट्स व्हाई इट इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। जैसा था वैसा ही, वही का वही आएगा, बिकॉज हमने इसको सिर्फ सिस्टमैटिक बनाया है। यहाँ पे इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में से एक सिस्टमैटिक फॉर्म में लेके गए, तो ये आपका इक्वेशन बना। नाउ यू कैन सॉल्व फर्दर, तब आप आगे सॉल्व कर सकते हो। देख लो जरा एक बार, इतना जस्ट सी इट प्रॉपर्ली। ओके, अब जरा यहां से जो है हम लोग लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इसकी प्रैक्टिस करना बच्चों, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर जो है ऐसा करता हूँ, ये ऊपर वाले में से जो है एस या टी को इधर हम लोग सफल करते हैं। सो वी विल राइट हियर 2s माइनस 2t इक्वल टू 6, देयरफॉर 2s इक्वल टू 6 प्लस 2t। ओके, अब यहाँ पे देखो 2s है, तो 2s की जगह पे यहाँ पे दूसरे में हम लोग 6 प्लस 2t ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब सब्स्टिट्यूटिंग 2s इक्वल टू 6 प्लस 2t इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ओके, बिकॉज ये तो आपका जो है 3 बन गया, तो ये वाला जो है आपका 2 है, तो यहां पर आप लिखोगे अभी 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ओके, सो आपने यहां पे क्या किया, 2s इक्वल टू 6 प्लस 2t, तो ये 2s की जगह पे आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ओके, सी नाउ नेक्स्ट। नाउ सी चिल्ड्रन, देखो जरा यहाँ पर 6, 3 और 2 दैट इज 5t, 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। सो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, इसको इधर सफल किया, सो 5t इक्वल टू 30, तो t इक्वल टू 30 अपॉन 5, सो t इक्वल टू 6। ओके, ठीक है, आपको t की वैल्यू मिल गई। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। Substituting t equal to 6 in इक्वेशन नंबर 1, हम इक्वेशन नंबर 1 में जा सकते हैं बच्चों, जहां पे ये दिया था s माइनस टी इक्वल टू कितना दिया था, s माइनस टी इक्वल टू 3 दिया था। Okay, now you see the value of t is given 6, so s minus 6 equal to 3, so s equal to 3 plus 6, so s equal to what, 9. Okay, therefore s equal to 9, t equal to 6, therefore
दिस इज योर सॉल्यूशन एंड दिस इज द वे टू सॉल्व इट। आप लोगों को मैंने सम स्टेप टू स्टेप पूरा का पूरा पॉज कर करके ही दिया है, आपके पास पूरा सम आ गया होगा। सो यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली, आपको वैसे ही करना है। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ सी चिल्ड्रन, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड सम, मे बी पॉसिबल आप लोगों के ऊपर से चला गया, लेकिन I tried my level best to explain you. See here, root 2x plus 3y equal to 0, यानी यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये दोनों के दोनों जीरो दिए हुए, इनकी वैल्यू जीरो है। ओके, फर्स्ट थिंग तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने तुमको पहले बताया था, इधर x और y दोनों में से किसी भी एक को इक्वल बनाओ। मैंने जो है जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी मैंने x को इधर इक्वल बनाया, मैंने ऊपर वाले को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे वाले को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया। 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 3 0 जा 0, 2 3 जा 6x, 2 8 जा 16। ये मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है बच्चों, बिकॉज ये सब रैशनल नंबर है। अगर रैशनल होता तो इस तरह से मल्टीप्लाई होता नहीं था, ये भी याद रखना। ओके, नाउ यू सी हियर 6x plus 9y equal to 0 and 6x minus 16y equal to 0। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे माइनस 16 जो परफेक्ट स्क्वायर है और रूट 9 भी परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर रूट 3 and 4 रिस्पेक्टिवली आएगा। मैंने क्या किया उसके बाद में, अब ये 6x इक्वल टू प्लस जो अंडर रूट 9y था इसको माइनस रूट 9y किया, तो सब्स्टिट्यूटिंग 6x इक्वल टू माइनस रूट 9y in equation number 4, therefore 6x minus 16y equal to 0 बराबर है। दूसरा वाला जो हम लोगों ने लिया था, यहाँ पे 6x की जगह पे हम लोगों ने माइनस 9y रखा। अब इसके हम लोगों ने रूट ओपन कर दिए, सो 9 का स्क्वायर रूट माइनस तो बाहर था 3 एंड 16 का 4। नाउ 4 एंड 3 अगर आप करते हैं तो माइनस 7 विल कम। ओके, सो y इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7, नो, उसकी कोई मतलब ही नहीं है बिकॉज न्यूमरेटर में 0 है। सो y इक्वल टू 0, नाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0। नाउ सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 0 इन एनी इक्वेशन। वी हैव टेकन फर्स्ट वन 2x plus 3y equal to 0, so value of y is 0, so 0 multiplied by root 3 is 0। ओके, तो 2x इक्वल टू 0 अपॉन अंडर रूट 2। ओके, अब 0 को डिवाइड करेंगे तो वो आएगा, therefore x इक्वल टू 0 and y इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस वन इज 0 and 0 means x is also 0, y is also 0। बच्चों सम इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, मैं ऐसा भी आप लोगों को नहीं बोल सकता हूँ कि बाकी के आप खुद कर लेना। ओके, तो अभी इसके 2-3 और पार्ट्स शायद में भी बन जाएं, मैं बोल नहीं सकता हूँ बिकॉज मेरी टेंडेंसी हो रही है कि मैं आपको एक सम करवा लूँ और फिर बोल दूँ कि बाकी आप कर लेना। जहाँ मुझे इजी लगेगा वहाँ तो मैं ये बोलने ही वाला हूँ, लेकिन जहाँ मुझे हार्ड लगेगा मैं आप लोगों को वहाँ पे समझाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे अगर कोई चीज़ हार्ड फील होती है तो डेफिनेटली आप लोगों को तो वो हार्ड फील होनी ही चाहिए। एज अ टीचर जो है, अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमेशा किसी चीज़ को देखता हूँ तो मैं उसी हिसाब से उसको करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद का 4th सम डेसिमल वाला है, दैट वन ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू, वो मैं आप लोगों को जो है एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो देखो उसको। ओके, ओके चिल्ड्रन, सो अगला सम हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये आपका 3.3 का फर्स्ट का 4th सम है। अब मैंने ये सम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज एकदम अलग अलग वैरायटीज में, तो आगे भी अगर कुछ और पैटर्न में आता है सो यू विल गेट द आइडिया। ओके, सो हियर यू कैन सी हियर दिस इज 0.2x plus 0.3y equal to 1.3 and here 0.4x plus 0.5y equal to 2.3। अब अगर आप इस इक्वेशन को सिस्टमेटिकली अच्छी तरह से अगर आप देखो तो अगर ये ऊपर वाले इक्वेशन को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों इक्वल को करने में इजी पड़ेगा, रेदर देन कि आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। ये सब चीज़ें सोचने की, इसी में दिमाग खपाना है और इसी के मार्क्स हैं। मार्क्स आपकी इंटेलिजेंस के हैं, हाउ मच कैपेबल यू आर, हाउ योर थिंकिंग इज प्रोसीड फर्दर, हाउ इट इज वर्किंग। इज इट क्लियर? सो
मैं इक्वेशन नंबर 1 को जो है आई एम मल्टीप्लाई बाय 2, मैं पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, अब आपको ऐसे नहीं करना है डायरेक्टली, यू हैव टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, मेरे पास जगह नहीं है दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस वे। उसके बाद में इसको वापस से यहाँ पे कॉपी करना है, तो सॉल्यूशन लिखना है, यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन एंड देन यू हैव टू कॉपी एंड देन यू हैव टू टेक दिस प्रोसीजर। इज इट क्लियर? ठीक है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉपी करना है एंड देन यू राइट हियर सॉल्यूशन and writing the solution, then you do this. Okay, so now if you multiply this entire by 2, so 2 2s are 4, so 0.4x plus 2 3s are 6, 0.6y equal to, अब थोड़ी देर के लिए अगर डेसिमल भूल जाओ तो ये 13 होता है, तो 13 2 का कितना होगा 26। अब यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक नंबर के बाद डेसिमल रख देंगे। नाउ दिस बिकम योर न्यू इक्वेशन एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट 0.4x plus 0.5y equal to 2.3 and this is equal as usual equation number 2। ये ऐसे का ऐसे रहेगा, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ यू कैन राइट हियर सब्स्टिट्यूटिंग, कोई सा भी ले लो, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। मैं फर्स्ट वाला ले रहा हूं, 0 सब्स्टिट्यूटिंग, सॉरी यू नॉट राइट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, you write like this way 0.4x equal to 2.6। अब इसको इधर कैरी करोगे तो माइनस 0.6y हो जाएगा। अब लिखोगे इसके बाद में सब्स्टिट्यूटिंग 0.4x equal to 2.6 minus 0.6y in इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इसकी जगह पर आपने यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करना है, सो यू राइट हियर इक्वेशन नंबर 2 0.4x plus 0.5y equal to 2.3। ओके, नाउ 0.4x की जगह पे ये लिखेंगे अब आप 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इज इट क्लियर? अब इसमें से अगर आप इसको सबट्रैक्ट करते हो तो 0.6 डेफिनेटली 0.5 से बड़ा ही है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.6 माइनस 0.1y। ओके, अगर ये प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता इक्वल टू 2.3। नाउ माइनस 0.1y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6 बराबर। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस 0.1y इक्वल टू माइनस 0.3। मालूम पड़ा? देखो अब 0 0 कैंसिल हो गया, 6 में से 3 लेस करेंगे तो 3 आएगा। बड़ा नंबर ये है इसलिए यहाँ पे भी माइनस की साइन आए, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया। सो यहाँ पर अब y इक्वल टू क्या है 0.3 अपॉन 0.1, डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू कितना आया आपका 3। देखो, ओके, दिस वे यू हैव टू डू, ऐसे आपको ये करना है। अब इसका x कैसे फाइंड आउट करना, देखो जगह कम है, आई हैव टू रब समथिंग, सो यू सी दिस सम, एक बार देख लो बराबर है, फिर मैं इसको आगे करता हूँ।
नाउ सी द चिल्ड्रन, अब देखिए जरा यहाँ पे हम लोगों ने y इक्वल टू 3 लेके आए। नाउ सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर क्या है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। 0.2x लिया, 0.3, y की वैल्यू क्या है 3, सो इंस्टेड ऑफ y वी हैव सब्सटीट्यूटेड हियर 3, y की जगह पे 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन रखा, इक्वल टू 1.3। 0.2x इक्वल टू 3 3 is 9, so 0.9 इक्वल टू 1.3। 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 9, थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल ही जाओ, ये सब जो 13 है ये 9 है, 13 में से 9 लेस करोगे तो क्या आएगा 4, लाइक दैट वे यू हैव टू डू, एंड आफ्टर दैट अगेन उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में ले आने का, आगे कुछ नहीं है तो 0। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे इसको ऐसे देखते हो 1.3 एंड 0.9, डेसिमल अगर भूल जाओ तो ये 13 में से 9 जाएगा तो 4 आएगा, बाद में वापस से डेसिमल रखने का ये एक तरीका। दूसरा ये भी है कि इधर से इनको इधर कैरी करो तो ये 13 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, बराबर है, आप कैरी करते हो ना, अब 13 में से 9 करोगे 4.00, दिस इज ऑल्सो वन वे। तो ये आप लोगों के कन्वीनियंसी और आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू टेकल इट। सो दिस इज नाउ 0.2 and 0 equal to 0.4, now x equal to 0.4 upon 0.2, so देखो after one number decimal is there, after one number decimal is there, so decimal cancel, दशमलव खत्म हो गए, so x equal to 4 upon 2, 2 to the 4, so x equal to 2, therefore solution set 2 and y क्या था आपका 3, तो पहले x लेते हैं और फिर y लेते हैं, एंड लाइक दिस वे वी हैव कंप्लीटेड। देख लो जरा, अब अगला वाला और भी महत्वपूर्ण है, उसको भी मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं तुमको इक्वेशन बना के दूंगा, आई विल मेक इक्वेशन फॉर यू, बट यू हैव टू सॉल्व योर ओन, आपको खुद से अपने आप से सॉल्व करना है, बराबर है। मैंने आपको पैटर्न एक एक सिखा दिए, कोई चीज़ बाकी रखी नहीं है, तो जब भी सब्स्टिट्यूट मेथड से आएगा यू हैव टू गो अकॉर्डिंगली, जस्ट सी इट, देख लो जरा एक बार। Now see children, this is your 6th sum, ये छठा सम है, पहले का छठा। अब ये फ्रैक्शनल इक्वेशन में दिया हुआ है, देखो 3x upon 2 minus 5y upon 3 equal to -2, and here x upon 3 plus y upon 2 equal to 13 upon 6। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली पहले एक एक इक्वेशन को पहले हम लोग लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, वी हैव टू डू दैट, देन इट बिकम इजी फॉर अस टू सॉल्व। सो सी हियर आई हैव टेकन दिस वन फर्स्ट, 3x upon 2 minus 5y upon 3 equal to -2, therefore now you have to take your LCM, 3 और 2 देखो दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, so we will multiply, 3 2 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आंसर आएगा, और ये पैटर्न से जाओगे कि 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 3 9, और यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 9x and 2 5 10y इक्वल टू -2, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो 9x minus 10y इक्वल टू 6 2 12 -12, ये एक आपको इक्वेशन नंबर 1। मैंने इसको इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि इसको हमने लीनियर में कन्वर्ट किया है, कोई नया इक्वेशन नहीं बनाया है, जब नया बनाएंगे तब उसको एक नया नंबर मिलेगा। इज इट क्लियर? नाउ सी सेकंड वन, x upon 3 plus y upon 2 equal to 13 upon 6। okay, now see further, 3 2 6, 2x, 3 into y 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6। नाउ सी चिल्ड्रन, इधर भी न्यूमरेटर में 6 है, सॉरी डिनोमिनेटर में 6 है, इधर भी डिनोमिनेटर में 6 है, दोनों में दोनों 6 है, तो हमको इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि कन्वीनियंट रहेगा, तो दोनों साइड में हमने मल्टीप्लाई बाई 6 किया, तो 6 6 इधर कैंसिल हो जाएगा, 6 6 इधर कैंसिल हो जाएगा। ओके सी, ठीक है।
ये कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में मैं आगे जब ट्रायंगल सिखाऊंगा आपको, एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑल। ओके, सो 2x plus 3y equal to 13. This is equation number 2. Now you see, first equation is your 9x minus 10y equal to minus 12 और दूसरा आपका है 2x plus 3y equal to 13। अब यहाँ पे बराबर ध्यान से देखो, अब यहाँ पे आपका कोई भी ऐसा कॉमन चीज नहीं है कि जहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो और आपका इक्वल हो, जैसे कि इसके पहले वाले में देखा था आपने 2 से मल्टीप्लाई किया आपका काम हो गया। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, इधर यू टेक 9 and 2 और x को इक्वल करो, इधर यू टेक 10 और 3 और y को इक्वल करो, प्लस वाले के साथ ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो लेट्स डू दिस वन, नाउ मल्टीप्लाई बाय 2 and this one you multiply by 9। अब देखो इक्वेशन चेंज हो जाएंगे, अब 2 9s are 18x minus 10 2s are 20y equal to minus 24। ओके, अब 9 2s are 18x minus 9 3s are 27y equal to 13 9s are 117। ओके, तो ये आपका अब जो इक्वेशन बना, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। अब ये दो इक्वेशन बने, इसके ऊपर अपने को पूरा वर्कआउट करना है। आपको इतना सब सेट करना पड़ेगा। देखो, कोई भी चीज इजीली नहीं मिलती है, यू हैव टू डू वर्क फॉर दैट। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा स्टेप टू स्टेप आपको, इसीलिए मैंने बोला मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ लॉजिक। आप जरा भी आपका ब्रेन इधर उधर डाइवर्ट करोगे, अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन में सोचोगे नहीं, चैनलाइज नहीं सोचोगे, तो यू विल बी डेविएटेड, आप कहीं और चले जाओगे। तो इसलिए प्रॉपर डायरेक्शन में उसकी थिंकिंग जरूरी है, एंड दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल थिंकिंग, कि मुझे इसके बाद यही करना है, यही आएगा। इज इट क्लियर? एक बार इसको देख लो और फिर इसके बाद में मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब तुम लोग जस्ट समझ सकते होगे कि एक एक सम करवाने में कितनी जो है मेहनत लग रही है यहाँ पर। अब देखो चिल्ड्रन, यू मेक इक्वेशन हियर, आपने यहाँ पे ये इक्वेशन बना लिया। ये इक्वेशन बनाने के बाद में आई हैव रिटन दिस इक्वेशन हियर, 18x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 20। यहाँ पे देखो जरा, माइनस 24 था और ये 20 इधर गया तो प्लस 20 हो गया, तो ये 18x की वैल्यू आई। ओके, ठीक है, किस में? इक्वेशन नंबर 3 में। अब सब्स्टिट्यूटिंग 18x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 20y इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है? 18x प्लस 27y इक्वल टू 117। इंस्टेड ऑफ 18x we have written this minus 24 plus 20y plus 27y equal to 117। देखो ये दोनों प्लस में है तो 27 and 20 ऐड करेंगे तो 47 आएगा। minus 24 I have suffered here, so this minus become plus। 47 equal to 141। okay, now इसको मेरे को 47 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि y इक्वल टू 47 दिया हुआ है, therefore y इक्वल टू 141 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सो इन दिस साइड बिकम डिवाइड। नाउ सी 47 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 3 करते हो तो 3 7 21, कैरी ऑन 2, 3 4 12 एंड 2 14, 141। इज इट क्लियर? ये आपका वर्किंग नोट हो गया। therefore y इक्वल टू 3। ओके, now you got the y, now you substitute the y in equation 1 2 3 4 जो भी आपके पास में हो। लेकिन अब मैंने आगे के रब कर दिया, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि क्या है, तो मैं जो है अभी इस समय जो है इसको 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो 4 क्या है? इक्वेशन नंबर 18x प्लस 27y इक्वल टू 117। ओके, now 18x plus 27 into 3 equal to 117। 27 3s are 81 होता है, तो 18x plus 81 equal to 117। 18x equal to 117 minus 81, that is 36।
ओके, देयरफॉर x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो x इक्वल टू 36/18, x इक्वल टू 2 because 18 2s are 36, so x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, देयरफॉर solutions at 2 and 3 means the value of x is 2 and y is 3. ओके, तो यहाँ पर आपका ये सम कंप्लीट होगा। इसको वापस से कॉपी नहीं कर लेगा, देख लो जरा इसको एक बार बराबर से अच्छी तरह से। वो आपका वर्किंग नोट है, वो भी ध्यान में रख लो किस तरह से किया है, दैट यू विल गेट द आइडिया। ये सब आपको मार्जिन में करना है, बुक के बाजू में करना है, बराबर है, पीछे नहीं करना है कहीं पे भी, ये भी सब ध्यान रखना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, जस्ट डू इट सिस्टमेटिकली। ओके, अब बच्चों इसके बाद में जो भी अब सम्स हैं, अब वो आप लोगों को खुद सॉल्व करने में, आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम सम्स है, विल मेक इक्वेशन, मैं इक्वेशन वगैरह सब बना के दूंगा, लेकिन आपको उसको अब अपने आप से सॉल्व करना है। जैसे कि अब सेकेंड सम देखो, सेकेंड सम देखो, ये बोल रहा है यहाँ पर 2x + 3y = 11, and 2x - 4y = -24। ओके, तो ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। बोला आपको ये m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पे y = mx + 3 है। अब उसके लिए आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करते हुए सब्स्टिट्यूट मेथड से y और x की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। ओके, आफ्टर फाइंडिंग दैट वैल्यू, अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे इसमें आप दूसरे वाले इक्वेशन में चले जाओ, 2x = -24 + 4y, और फिर उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद में x और y फाइंड आउट करो। वंस फाइंडिंग द x एंड y, मैं आपको बता देता हूँ, x = जो है -2 है, y = 5। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? भाई मैंने सॉल्व किया है, मैं आपको अब नहीं बताऊंगा कैसे करना, क्योंकि आपको मेथड मैंने बराबर दिखा दी है भाई, अभी मैंने मेथड अब आपको करनी है। आपने बुक में ऐसे नहीं करना है, आप जैसे मैंने आगे सिखाया था उसी हिसाब से स्टेप टू स्टेप करना है। मैं आपको यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट बता रहा हूँ, फिर उन सबको आपने ज्वाइन करना है, अमालूम करना है। सो x = 2, y = 5, नाउ सब्स्टिट्यूट y = mx + 3। अब y की वैल्यू बोलो, यहाँ पे क्या है, 5 है, इक्वल टू m, x की वैल्यू क्या है, -2 एंड +3। अब इसको इधर शफल करोगे तो क्या होगा, 5 - 3 इक्वल टू -2m होगा। ओके, तो इसमें से 5 में से 3 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 2 = -2m, तो 2/-2 = m, -2/2। अब ये बताने की जरूरत नहीं, मैंने रैशनलाइज किया है, कितनी बार एक ही चीज सिखाऊं, -1 = m, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये देख लो, ये लास्ट में यू हैव टू डू लाइक दिस वे, वंस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, you have substitute that value in the given equation and find the value of m। देख लो जरा इसको, ये सेकंड सम था आपके लिए। नाउ सी द थर्ड सम। अब तीसरा सम जरा देखो आप लोग। अब थर्ड सम में क्या बोल रहा है ये, अब इसमें 3 उसके सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट सम में बोल रहा था डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर है और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बराबर है वो 26 है। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है।
बराबर है। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। देखो कैसे जो इक्वेशन बनाते हैं, सपोज दैट नंबर इज x and y respectively, वो नंबर x एंड y है। अब उनका डिफरेंस बोला है उसने, कितना बोला है उनका डिफरेंस? 26। ओके, एज पर गिवन फर्स्ट कंडीशन, डिफरेंस बोला है तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1। ओके, वन नंबर इज 3 times more than another number, therefore as per second condition। अब सेकंड कंडीशन क्या है? एक नंबर यानी x दूसरे नंबर से 3 टाइम्स ज्यादा है, तो x इक्वल टू 3y, therefore x माइनस 3y इक्वल टू 0। ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। मैंने आपको दोनों इक्वेशन बता दिए। अब आगे आपको इसको मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड से आपको इसको आगे सॉल्व करना है। आगे नहीं बताऊंगा, आप खुद से करना, इतने सारे सब बता दिए। और जब भी चेक करने के लिए आओगे, मैं ये सब चेक करूंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। मैं जिस दिन भी बुलाऊंगा चेक करने के लिए, ये सब मेरे को लिखा हुआ कंप्लीट टू कंप्लीट। फिर मुझे उस दिन ये नहीं बोलना सर मैंने नहीं किया है करके, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पहले क्लियरली बोल रहा हूँ तुम लोगों को। हाँ, दिमाग में रख लेना ये चीज़, देख लो जरा एक बार। See the second sum। अब ये बोल रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, उसमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। ओके, अब यू नो वेरी वेल द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो यहीं से हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सपोज मेजर of one angle of supplementary angle V x degree and another V y degree। एक का मेजर x डिग्री, एक का मेजर y डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। देयरफॉर एज पर फर्स्ट कंडीशन x प्लस y इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 1। ओके, one angle is 18 degree more than another one, बराबर है। तो फिर as per given second condition। ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या है कि वन एंगल यानी x इज मोर 18 प्लस y प्लस 18।
एक बोला है ना, वन एंगल इज 18 मोर देन अनदर, एक एंगल दूसरे वाले से 18 ज्यादा है, तो ये वाला जो है इससे 18 ज्यादा है, तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2. इज इट क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर 2. गॉट द आइडिया? ओके चिल्ड्रन, अब आप यहाँ पे जरा देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 18, दूसरा जो है 18 ज्यादा है, सो हमने y को इधर शफल किया तो x माइनस वाई इक्वल टू 18. लाइक दिस वे वी मेक टू इक्वेशंस. ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन, अगला और देखिए. नाउ थर्ड वन इज वेरी इजी, यू कैन डू दैट. मैं ओरली भी आपको इसके इक्वेशंस बता देता हूँ, यू विल गेट द आइडिया. और फिर हम लोग उसके बाद में दो इंपॉर्टेंट सम है वो करेंगे, मतलब उसके भी इक्वेशन ही बताऊंगा तुम लोगों को मैं. भाई सम तो तुम लोग नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ करने वाला नहीं होगी, सम तुम लोग करोगे. मैंने तुमको जो है बहुत मस्त तरीके से एक्सप्लेन करके दिया है. सी द थर्ड वन, ये बोल रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल इन रुपीज 3800 एंड लेटर शी बाइज 3 bats and 5 balls in rupees 1750. So find the cost of each bat and ball. So you assume like this way, the cost of one bat be x rupees and cost of one ball be y rupees. Okay, so first equation आपका ऐसा बनेगा 7x plus 6y equal to 3800 और दूसरा इक्वेशन आपका बनेगा 3x plus 5y equal to 1750. Is it clear? इस तरह से आपको जो है थर्ड वन आप लोगों को इक्वेशन बनाना है और आपको जो है सॉल्व करना है. अब जो दो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको जो है ध्यान में रखिएगा. ये जो है आपका थर्ड का फोर्थ सम है, थर्ड का फोर्थ. थर्ड का फोर्थ सम है. ओके, अब मैं यहाँ पर जो है वो सब फॉर्मेलिटीज नहीं करूँगा, आपको ओरली जो है यहाँ पे ये बता रहा हूँ मैं, और फिर उसके बाद में आप लोगों को हाउ टू डू इट वो आप लोगों ने देखना है. देखो यहाँ पे ये बोल रहा है अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड. मतलब अगर कोई टैक्सी समझो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है तो पर्टिकुलर डिस्टेंस का उसका चार्ज फिक्स है और उसके बाद में जो है उसका चार्ज जो है किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता जाता है. ठीक है, ओके. अच्छा, फिर आगे वो बोल रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड 105. बराबर है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, बराबर है, और उसका जो है टोटल जो चार्ज लिया वो 105 रुपये लिया. ओके, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज पेड रुपीज 155. और इसी तरह से 15 किलोमीटर की जर्नी का जो है 155 रुपये लिया. सो ये बोल रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर. बराबर है, फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर का चार्ज क्या है, दैट यू हैव टू फाइंड फर्स्ट थिंग. सेकंड बोल रहा है हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. तो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस में वो कितना पे करेगा. तो पहले तो आपको एक्स और वाई ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको 25 किलोमीटर का डिस्टेंस का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है. इज इट क्लियर? सो यू हैव टू राइट लाइक दिस वे. आपको इसको ऐसे लिखना है. देखो यहाँ पे जरा मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, जस्ट सी इट. सपोज fixed charge be rupees x. Okay, suppose fixed charge be rupees x and charge for further distance be rupees 1. ओके, अब फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या बोला है, तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर उसने बोला है कि भाई
फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज इज 105। तो फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज। ओके, सो एज पर गिवन, एज पर फर्स्ट कंडीशन बराबर x प्लस 10y इक्वल टू कितना रुपया है टोटल 105। सिंपल बराबर। देखो फिक्स चार्ज का आपका जो है x रुपीज था और उसके अंदर पर किलोमीटर, अब टोटल 10 किलोमीटर उसके बोले तो उसका जो है y रुपीज था तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो x प्लस 10y इक्वल टू बराबर। सिमिलरली एज पर सेकेंड कंडीशन, अब सेकेंड कंडीशन में कितना बोल रहा है वो, सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज इज 155। ओके, तो सेकेंड किलोमीटर में भी फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज तो 15y, टोटल मिलाकर कितना रुपया हुआ है 155। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इस तरह से जो है बच्चों आपका यहाँ पे इक्वेशन बनेगा। जरा देख लो, इसके बाद में आगे का आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करना है और 25 किलोमीटर का कितना डिस्टेंस होगा वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, देख लो जरा एक बार। सी द नेक्स्ट वन। अब ये लास्ट है बिकॉज सिक्स्थ वाला सब मैं ऑलरेडी आगे एज वाला करवा चुका हूँ, दैट वन यू हैव टू डू, आपका दिमाग लगा के करना। फिफ्थ वन इज द लास्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड इन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, सपोज न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन is x and denominator be y, therefore that fraction is that is x upon y। अब फ्रैक्शन मिल गया, ये फ्रैक्शन आपका क्या है x upon y। अब आगे कंडीशन क्या दे रहा है, if 2 is added to both the numerator and denominator, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर अपन लोग 2 ऐड कर देते हैं then that fraction become 9/11। 9/11 वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। ओके, और आगे वो बोल रहा है if 3 is added in both the numerator and denominator, अगर आप उसी फ्रैक्शन में ओके आप 3 ऐड करते हो देन दैट फ्रैक्शन बिकम 5/6, तो वो फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगा। तो आपको ये फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। क्लू दे रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 11 को ये पूरे से, y + 2 को इधर लेके जाओ, बराबर है। देख भी लो यहाँ पे 9 x + 2 इक्वल 11 x + 2 इक्वल टू 9 y + 2। आगे सॉल्व करोगे सिमिलरली यहाँ पर भी 6 x + 3 इक्वल टू 5 y + 3, और आगे दोनों इक्वेशन ढूंढकर एंड देन फर्दर यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, हियर वी आर कंप्लीटेड ऑल द सम्स रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूट मेथड। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द एलिमिनेशन मेथड विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, यानी पार्ट 4 के अंदर आप लोगों को वो सब आएगा। सो बाय, सी यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।